Good afternoon. You're welcome to the session for today. That is none other than cell cycle and cell division. Now, before starting the topic of cell cycle and cell division, I would ask a very simple basic question और on which I have complete trust कि आप लोग उसका आंसर बहुत आराम से दे सकोगे. So, here is a one simple question, and before the question, I would say that we have two cases to discuss. So, I have case number 1 and case number 2. So, you have case A, condition of case A and case B, and this is your question. That let us say that this cell is your mother cell. Now, this mother cell undergoes a division and cleaves itself, तोड़ देता है अपने आप को into two halves or two daughter cells, I would say. This is condition number 1. Alright, तो condition number 1 क्या थी? Mother cell से बन रही हैं दो daughter cells directly by reducing the content of mother cell into two halves. Now, another question, another condition, case B, where I can see this is my mother cell and it decides to form two daughter cells, but before that quickly it will regain or it can duplicate or it can replicate its material and finally will divide the content, the duplicated content, into two daughter cells. This is daughter cell number 1, this is daughter cell number 2. Alright, so further specification के लिए I'll write the name here. So this is my mother cell. I'll write M as in mother cell and D as in daughter cell. Alright, M is my mother cell. Now you have to answer that what do you think. आपकी previous study से इतना आपने पढ़ा है, आपको मालूम होगा, आप लोग बताएंगे कि क्या लगता है आपको, which condition is the correct condition, which condition is the correct case with respect to cell division, condition A or condition B. So whatever is your answer, type in your chat box, A or B. What do you think? So M was her mother cell and D is daughter cell. So Jagriti says B, Harshita says B, and no more answers. Your input required. Karan says B, Apurva says B. Okay. Alright, MP1. Whosoever with this MP_1, please type in your complete name so that I can connect to you very easily. So write अपना नाम लिखिए पूरा. MP1 क्या है बेटा आपका नाम? अच्छा, ओके, यू आर मल्लिका. अनुष्का ने अभी अभी ज्वाइन किया है. अनुष्का बेटा, वी हैवंट स्टार्टेड द टॉपिक एकदम से. सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है आपकी प्रीवियस नॉलेज से, दैट सेल साइकिल दो टाइप्स का हो सकता है या किस टाइप का हो सकता है. सिंपली आई वुड से कंडीशन ए दी है, कंडीशन बी दी है. अब आपको बताना है प्रीवियस नॉलेज से कि कौन सी कंडीशन सही है विद रिस्पेक्ट टू सेल डिविजन. अनुष्का, योर आंसर इनपुट रिक्वायर्ड. SD says B. Siddharth says B. Good. Nimisha says B. Anushka _1. Where are you? Your answer is required. Alright, we have enough of the answers, and the happiest part is that maximum of your class is right. That the right condition is condition B and condition A, case A, is a totally wrong method. That means अगर cells divide करती हैं और दो daughter cells बनाती हैं, उससे पहले they will duplicate their material. तो यहाँ पे देखा, mother cell से बनेगी पहले एक बड़ी enlarged with duplicated content वाली mother cell, which will eventually divide into two daughter cells. Alright, so let us quickly write the definition for cell cycle.
So, cell cycle, it is an orderly sequence of events. तो sequence of events में क्या होगा? कभी कभार ऑर्गेनेलिस डुप्लीकेट होंगी, कभी जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होगा. तो वट एवर द कंटेंट इज प्रेजेंट इन साइड दिस सेल, इट विल डुप्लीकेट इन सम सीरीज, इन सम स्टेप. सो इट्स एन ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स by which a mother cell duplicates. डुप्लीकेशन को आप लोग रेप्लीकेशन भी कह सकते हो, वन एंड द सेम थिंग, यानी कि फोटोकॉपी होना, जेरोक्स होना. मदर सेल डुप्लीकेट्स इट्स साइटोप्लाज्मिक. साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सेल ऑर्गेनेलीज. इट्स साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल कहां पर होगा? न्यूक्लियस में. बच्चे अपने चैट बॉक्स में लिखेंगे व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, व्हाट डू यू नो अबाउट जेनेटिक मटेरियल. डैश इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल. राइट इन योर चैट बॉक्स. Yes, DNA and RNA. Harshita is right. SD says gene. Very good. Absolutely right. So DNA is my genetic material and so is yours. So it's an orderly sequence of events by which mother cell duplicates its cytoplasmic and genetic material and passes the same faithfully into two daughter cells. So this was my definition about cell cycle. Now ये सारा मेथड एक वेग मेथड नहीं है. सारा काम जितना भी चल रहा है सेल साइकिल के जो इवेंट्स हैं वो सारी चीजें बेटा जी बहुत ही मैनेज तरीके से चल रही हैं. एंड आप ये जानते हो कि मास्टर ऑर्गेनेली, ब्रेन ऑर्गेनेली कहते हैं न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस में क्या है? जेनेटिक मटेरियल है. तो जीन्स ही कंट्रोल करती हैं सेल साइकिल के इवेंट्स को भी. सो आई विल से दैट इट इज अ genetically controlled. It's a genetically controlled method. It is a genetically controlled method. Now, one more thing, a takeaway information that हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल के डिवाइड करने का टाइम वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल, if we talk about humans, in human beings, in human, cell cycle goes for around complete 1 day and that is my 24 hours. तो 24 घंटे में ह्यूमन सेल की एक सेल डिवाइड करती है और 2 डॉटर सेल्स बना देती है. लेकिन हमसे ज्यादा फास्ट है यीस्ट. इन यीस्ट cell cycle takes around only 90 minutes. तो 90 मिनट के बाद 2 डॉटर सेल्स. एंड इन इकोलाई जी है एक बैक्टीरिया, Escherichia इकोलाई इज द कंप्लीट नेम, प्रेजेंट इन योर गट ऑल्सो, स्टमक में पाया जाता है. तो इकोलाई में भी सेल साइकिल देखें तो सबसे कम कंपैरेटिवली 20 मिनट्स. तो 20 मिनट्स में 20 मिनट के अंदर दूसरा इकोलाई बन जाएगा, मतलब डॉटर सेल्स क्रिएट हो जाएंगी. तो आप देख सकते हो इट इज वेरी क्लियर दैट इकोलाई 20 मिनट्स में कॉपीज बना रहा है. तो हर 20 मिनट में नए इकोलाई, यानी कि इस वजह से हम लोग ये लाइन कहते हैं दैट बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट, बैक्टीरिया इज कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, क्योंकि दे हैव दिस रैपिड स्टेट ऑफ डिविजन. जितनी स्पीड में जिस इंडिविजुअल की सेल्स डिवाइड करेंगी उतनी ज्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ने के चांस है इफ इट इज अ यूनिसेल ऑर्गेनिज्म. ऑलराइट, तो बैक्टीरिया 20 मिनट में
डुप्लीकेट कर रहा है, तो यानी कि इसलिए हर जगह पाया जा रहा है. So this was about the basic definition of cell cycle. Now let us try and find out what are the different phases of cell cycle. So is my next topic about phases of cell cycle. So I'll write phases of cell cycle. Cell cycle, beta ji, is divided basically into two major phases. So those two phases are one is my I phase and other is my M phase. Now one is my I phase. I stands for interphase and M can stand for either mitotic phase or meiotic phase. You don't have to worry about the phases. We'll discuss the events occurring in the phases later on, shortly. So I phase, we'll write the definitions. बेटा जी, अगर आप लोगों ने अपनी कॉपीज साथ में नहीं लाई हैं, आपके पास नोटबुक्स नहीं है, तो I'll give you few more moments कि आप अपनी कॉपीज लेकर आओ, क्योंकि these जो भी आप पढ़ रहे हो टॉपिक्स, these are highly relevant to your class course and ये आपको बहुत हेल्प करेंगे. So जिसके पास कॉपी पेन नहीं है, लेकर आओ, note it down. It is not for just for watching, it's for understanding. For understanding you need to write down things. So I phase is my interphase. I phase is my interphase and my M phase is either mitosis or it is also called as meiosis. तो meiosis और mitosis में क्या फर्क है, ये अभी हमारे पढ़ने का कंसर्न नहीं है, इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे. So basically what is the difference between two? अभी पहली डायग्राम में अगर आपने देखा होगा, हमने बोला कि this is my mother cell, rather I will check this वाला. This is my mother cell. This mother cell will undergo division and will definitely form two daughter cells. लेकिन एक टाइम कौन सा टाइम था, जब सेल अपना कंटेंट डुप्लीकेट कर रहा था, जब सब सेल का जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल डबल हो रहा था, ताकि वो डुप्लीकेटेड मटेरियल दो डॉटर सेल्स में भी चली जाए. तो जो फेज मटेरियल डुप्लीकेट करने वाला फेज था, उस टाइम पे कोई डिवीजन नहीं चल रहा था. सो दैट फेज, माय प्रिपरेटरी फेज, इज द इंटरफेज. और जहां पे एक्चुअल पिक्चर में क्लाइमैक्स आया, यानी कि दो डॉटर सेल्स डिवाइड करी, दैट वुड बी माय एम फेज. तो क्लाइमैक्स देखने के लिए जैसे पूरी पिक्चर देखनी पड़ती है, ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, सो वो फेज होगा इंटरफेज, और फाइनली जब क्लाइमैक्स आएगा तब होगा हमारा एम फेज. सो देयरफॉर आई कैन ऑल्सो राइट, विच वुड बी मोर रेलेवेंट, दैट इंटरफेज इज द नॉन डिवाइडिंग फेज. And M phase is my dividing phase. So this is my dividing phase. Now again I will say that interphase को साइंटिस्ट ने अलग अलग नामों से बुलाया. Interphase is also called as energy phase, or it is also called as preparatory phase. It is also called as preparatory phase. तो आपको नाम से समझ आता है, जब तैयारी चल रही है, जब प्रोसीजर चल रहा है, रेडी कर रहा है अपने आप को सेल, तो ये फेज होगा प्रिपरेटरी फेज. तो आई कैन ऑल्सो राइट द रीजन बिहाइंड दैट इज, दोनों को कहने का रीजन है, एनर्जी फेज भी तभी कहा गया है क्योंकि बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, एटीपी यूज हो रहा है, ताकि नए नए कंपाउंड सिंथेसाइज हो जो डॉटर सेल्स में बटे. So therefore it is called as energy or preparatory phase, or I can write the reason is high metabolic activity. Reason is high metabolic activity.
हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, इस वजह से एनर्जी फेज या डिवाइडिंग फेज. एंड माई M phase, this is important, so either you can write down important in your copy or I can make a star, little star over it, and that signifies that it is called as the most dramatic phase of the cell cycle. Now why do you think it's the most dramatic phase? क्योंकि अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया मैंने, रीजन है कि एक्चुअल सेल डिवीजन यहां पे हो रहा है, इसीलिए इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज. जैसे पिक्चर में क्लाइमैक्स सबसे ज्यादा ड्रामेटिक है, वैसे ही एक्चुअल सेल डिवीजन सेल साइकिल में सबसे ज्यादा ड्रामेटिक है. सो रीजन आई विल राइट, बिकॉज एक्चुअल सेल डिवीजन occurs here, so which is why it is called as the most dramatic phase of the cell cycle. Now one more point, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, that most time of the cell cycle. आप लोग बताओ, पिक्चर देखने में ज्यादा टाइम लगता है या उसका क्लाइमैक्स देखने में ज्यादा टाइम लगता है? क्लाइमैक्स तो एंड में होता है, लास्ट के 5 मिनट में, और बाकी टाइम क्या चलता है? पिक्चर चलती है, स्टोरी बिल्डिंग चलती है. वैसे ही यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन यू विल राइट that it takes major time of the cell cycle, or in terms of percentage I can say takes 95% of cell cycle, and M phase will takes only 5% of cell cycle. Alright, so before proceeding to further information, I would ask you that अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा that human cell cycle का टाइम स्पैन था 24 hours. तो अगर 24 hours is equal to 100%, then type in your chat box what time, how many hours will be taken by I phase and how many hours will be taken by M phase. Again, बोर्ड नंबर 1 पे आ जाते हैं. ज्ञान लिखा है ह्यूमन सेल साइकिल में 24 आवर्स कितना था? 100% था. तो यानी कि 95% कितने घंटे होंगे? Siddharth, Jagriti, I'm asking that what is the time taken for interphase? Interphase कितने टाइम चलेगा? Yes, Harshita says H and 22.8 hours. लिखते जाइए. Alright, very good. अनुष्का ने लिखा है interphase for 22.8 hours. Jagriti says 22 hours 56 minutes. Namisha says 22 hours 8 minutes. So बिल्कुल सही कैलकुलेशन की आप लोगों ने. That means ह्यूमन के अंदर, इन ह्यूमन कितने घंटे? Around 23 hours will be taken up by interphase and 1 hour for M phase. So आपने अभी किसका लाइफ साइकिल लिखा है? आपने ह्यूमन का भी लिखा है, आपने इकोलाई का भी लिखा है, और आपने लिखा है यीस्ट का भी. सो दैट इज अ शॉर्ट पीस ऑफ योर होमवर्क, और जिसको आप अपने घर पे करोगे. कैलकुलेट कीजिए. इकोलाई में 20 मिनट्स का कौन सी कितने मिनट चलेगा इंटरफेस, कितनी देर चलेगा एम फेज. यीस्ट में भी आप लोग करेंगे. सो इट इज बिट छोटा सा होमवर्क हम कहेंगे, ये आप करोगे. ओके, सो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक. दैट फेजेस हमने लिख लिए. आई फेज लिख लिया, एम फेज लिख लिया, रीजन लिख लिया, कौन सी चीज क्या है और इनको स्पेशली किन किन नाम से बुलाया जाता है. सो लेट अस गो टू the actual view, diagrammatic view of the cell cycle.
So I have my cell cycle. So is yours. Alright, this is your cell cycle. सेल साइकिल के अंदर अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि दैट मैक्सिमम ऑफ द टाइम स्पैन इज टेकन अप बाय आई फेज एंड ओनली 5%, दैट इज 1 घंटा लगता है केवल किस चीज में, एम फेज में. सो दिस इज माई 5% शोइंग माई एम फेज. सो ये एम फेज शो किया जा रहा है आप लोगों को. दिस इज माई एम फेज. सो दिस इज माई माइटोटिक फेज और मियोटिक फेज. क्या होता है उसको बाद में देखेंगे. इन एडिशन टू द एम फेज देयर इज अनदर फेज विच इज बिट मिस्टीरियस. उस चीज को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यस आई टेल यू इट्स अ पीस, रियल पीस ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप बहुत ज्यादा एडमायर करोगे रिगार्डिंग द सेल साइकिल. सो हियर इज अनदर फेज, मिस्टीरियस फेज. देखेंगे क्या है खास इसके अंदर, लेकिन ये हम सबसे एंड में पढ़ेंगे आज, after reading all the phases of cell cycle. So this phase is my quiescent phase. Quiescent phase, or it is also called as G0 phase, or some people also call as G0 phase. One and the same thing. It is my quiescent phase or G0 phase. And here was my M phase. That was either meiosis or it was either mitosis. Now rest of the phase of the cell cycle, what do you think? क्या दिख रहा है आपको ज्यादा टाइम? ज्यादा टाइम आपको क्लियरली विनर कौन दिख रहा है भाई? यहाँ पे हमें विनर दिख रहा है. सिर्फ इतना सा पार्ट एम फेज का था, और ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जितना भी है, दैट इज इंटरफेज. यस, वेरी गुड. बच्चे लिख रहे हैं इट इज इंटरफेज. सो आई विल लेबल इट एज माई इंटरफेज. यहां लिख देते हैं इंटरफेज. Interphase is also divided into many phases. कभी सेल किसी टाइम पर हो सकता है ऑर्गेनेलिस डुप्लीकेट कर रही हैं, हो सकता है किसी टाइम पे डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है, हो सकता है किसी टाइम पे अदर सेल के कंटेंट डुप्लीकेट हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ सेल ऑर्गेनेलिस G1 में कर रही हैं, कुछ G2 में कर रही हैं, कुछ S में कर रही हैं. तो ये G2, S या G1 ये क्या चीज है बेटा? These all are different phases of interphase only. They are being distinguished because they are specified in different type of organelle या DNA duplication. So I have different phases. I will label them as तो यहाँ पे बेसिकली 3 फेजेस हैं. सो वन फेज, द फर्स्ट फेज, दिस इज माई G1 phase. Second phase is my S phase, and the last phase is my G2 फेज. तो ये 3 फेजेस हैं किस चीज के? इंटरफेज के. एंड क्विकली मैं साइड पे लिख सकती हूँ G1 प्लस S प्लस G2. ये तीनों चीजें इंटरफेज ही कहलाएंगी.
नाउ देयर हैज टू बी सम पर्टिकुलर रीजन, क्यों G1 बोला गया, क्या रीजन है G लिखने का, यू नो. सो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके मन में आएंगे. इसका आंसर हम लोग यहाँ साइड पे लिख लेते हैं. G stands for gap. G stands for gap. And what is this gap all about? Now the gap we are talking about here, it is the gap with respect to DNA का duplication. बेटा जी अभी मैंने आपको बताया कि सेल की एक फेज में कोई अलग चीज डुप्लीकेट हो रही है, दूसरे फेज में कुछ और, तीसरे फेज में कुछ और. एस फेज एक ऐसा फेज है जहां पे डीएनए डुप्लीकेट करता है. डीएनए का फोटोकॉपी होता है, डीएनए जीरोक्स होता है, ताकि जीरोक्स करके एक कॉपी एक डॉटर सेल में, दूसरी कॉपी दूसरी डॉटर सेल में भेज देंगे. जी का मतलब है गैप वन फेज, गैप बिटवीन डीएनए सिंथेसिस, देयरफॉर द वर्ड गैप इज यूज्ड. तो G1 और G2 के बीच में आता है एस फेज, या हम ऐसा कह सकते हैं डीएनए डुप्लीकेशन की फेज में, गैप फेज में गैप है, डीएनए डुप्लीकेट नहीं करेगा, और G2 फेज में भी गैप है जहां पे फिर से डीएनए डुप्लीकेट नहीं करेगा. तो दिस इज माय गैप वन फेज, और G2 इज सिंपली माय गैप टू फेज. नाउ आई विल आस्क सिद्धार्थ, आपका एक क्वेश्चन है, अभी आप थोड़ी देर ये पढ़ लो. आई एम वेरी श्योर दैट इफ यू गो थ्रू दिस टॉपिक कंप्लीटली फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एंड तक आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. अगर बेटा सिद्धार्थ आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, देन अगेन यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन योर चैट बॉक्स, बट स्टिल फॉर द टाइम बीइंग कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट एवर इज बीइंग टॉट टू यू है. सो पहली चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है कि अगर मुझे गैप 1 या गैप 2 में से, G1 या G2 में से, out of the two, if I have to call some phase as my pre-mitotic phase, pre-mitotic, तो मुझे किसको pre-mitotic phase बोलना चाहिए? प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में. तो प्री किसको कहना चाहिए? अपने चैट बॉक्स में लिखिए. अपूर्वा says G1, जागृति says G1, MP1 also says G1, अनुष्का says G1. Alright, go on. Hardik says G1, Karan says G1. Okay, is that all? Here. Okay, I think that's all right. जितने बच्चों ने आंसर करना था उन्होंने कर लिया, लेकिन yes बेटा, I'll give you a brief hint, and that hint is, पूछा है प्री माइटोटिक गैप फेज. प्री स्टैंड्स फॉर पहले, पोस्ट स्टैंड्स फॉर बाद में. प्री का मतलब प्रीवियसली, पोस्ट स्टैंड्स फॉर आफ्टरवर्ड्स. सो द क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू यू दैट प्री माइटोटिक फेज, माइटोसिस से पहले कौन सा फेज है? तो सारे बच्चों ने धड़ाधड़ G1 लिख दिया. आंसर क्या होना चाहिए था? यस, नाउ एवरीवन इज राइटिंग द राइट आंसर विच इज G2 फेज. तो बेटा जी, इफ आई एम कॉलिंग माई G2 फेज एज प्री माइटोटिक फेज, देन व्हाट शुड आई कॉल माई G1 फेज? राइट? अगर मेरे लिए गैप 2 फेज था, प्री माइटोटिक फेज, yes, Rachita says post mitotic, very good. So this is my gap 2 phase was my pre mitotic phase. This was my pre mitotic phase, gap phase, and so is my gap 1 phase, post mitotic post mitotic phase.
S phase was my synthesis phase. तो यहाँ पे किसकी सिंथेसिस हो रही है? डीएनए की सिंथेसिस हो रही है. सिंथेसिस ऑफ डीएनए चल रहा है. So therefore it is my synthesis phase. Now 23 hours के लिए चल रहा था तुम्हारा interphase. So if interphase was for 23 hours, that means those 23 hours have to be divided into 3 phases. और वो तीनों phases अलग अलग time duration के हैं. I'll write the duration in the phase itself. Gap 1 phase lasts for about 6 to 12 hours. तो 6 से 12 घंटे में gap 1 phase. S phase 6 से 8 घंटे में and G2 phase 3 to 4 hours. Now what should I write in M phase? M phase में क्या लिखें? बताओ. 1 hour. Starting में ही आपने पढ़ लिया that M phase lasts for about only 1 hour. Now Rachita has a very beautiful question that why does G1 phase take such a long time? तो बेटा जी इसका मतलब क्लियर होगा, यानी कि इस फेज के अंदर सबसे ज्यादा मटेरियल डबल होता होगा, सबसे ज्यादा जेनेटिक मटेरियल, नॉट जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, ऑर्गेनेलीज, एटीपी, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स, ये सारी चीजें मैक्सिमम चीजें G1 में बनती होंगी और इसी वजह से G1 फेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज है. वन थिंग अगेन टू कीप इन माइंड दैट G1 फेज के अंदर cell organelle achieves, cell organelles, cell itself achieves the maximum size. तो I can also say G1 phase में maximum growth हो जाती है सेल की और इसी वजह से इसमें ज्यादा टाइम लगता है. Is that clear? But only human M phase is for 1 hour. Yes, Jagriti, this all R वाला जो भी हमने लिखा है, R content is with respect to ह्यूमन ओनली. यस, ह्यूमन के लिए, सबके लिए नहीं है ये सिर्फ ह्यूमन का है. आवर्स WRT stands for with respect to ह्यूमन, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में. ऑल राइट, इज दैट क्लियर? अभी तक इस टॉपिक तक आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो बेटा जी राइट इन योर चैट बॉक्स की हमारी ये दिक्कत है, ये चीज समझ नहीं आई. ट्राई टू फ्रेम अ क्वेश्चन इफ देयर इज. राइट डाउन योर क्वेश्चन. अगर कोई भी दिक्कत आई है, कोई डाउट नहीं है तो राइट इन नो डाउट इज देयर और आई विल डू दैट. सिद्धार्थ, आई एम कमिंग टू G0 फेज. G0 फेज ओवर नहीं किया हमने अभी. G0 फेज इज समथिंग दैट वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट. G0 को छोड़ के अभी तक इतना जो पढ़ा उसमें आपको कोई दिक्कत है? इज देयर एनी डाउट? ठीक है, डाउट है कोई तो लिखिए. हर्षदा से नो डाउट, जागृति से नो डाउट, अनुष्का नो डाउट, अपूर्वा हैज सम डाउट. लेट मी कम बैक टू अपूर्वा. अपूर्वा, प्री एंड पोस्ट. यस अपूर्वा, प्री एंड पोस्ट. बेटा इट वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ दैट एम फेज से पहले, एम फेज ये था, एम फेज से पहले क्या था? G2 फेज. और M फेज से पहले G2 फेज आता है, इस वजह से G2 को कहा गया प्री माइटोटिक फेज, यानी कि माइटोसिस से एकदम पहले G2 फेज था. और जब सेल दूसरी डॉटर सेल साइकिल में एंटर कर रही है तो वो अभी अभी अपनी माइटोसिस करके आई है. तो देयरफॉर G1 फेज इज कॉल्ड एज पोस्ट माइटोटिक फेज. इज दैट क्लियर? जागृति, G0 फेज अभी करना है. यस यस, वी हैव टू डिस्कस. नेक्स्ट टॉपिक इज आवर G0 फेज. कोई डाउट है बच्चों को? चले आगे. शुड वी मूव अहेड? ओके, ऑल राइट. यस, सो मेनी yeses आर देयर. ओके ओके. कुछ बच्चों ने पूछा है कि इन फेजेस में होने क्या वाला है. बेटा अभी हम उस सब का लिखने लगे हैं. विल राइट सेपरेटली फॉर G1, विल राइट सेपरेटली फॉर G2, S एंड सो ऑन. सबके बारे में लिखेंगे. ये बेसिक आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि हो क्या क्या रहा है, आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाओ कि पढ़ना क्या क्या है हमको.
तो आपका थोड़ा सा ये साइकिल आपको ब्रीफ किया है. चले आगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्विसेंट फेज. Now it is my G0 phase. Some scientists इसको G0 भी बोल देते हैं, तो that is not an issue. Whatever is suitable to you, you can say G0 phase, or also called as quiescent phase. Quiescent phase. Quiescent phase. Now, ये करने से पहले आपको ये सिंपल क्वेश्चन मैं एक पूछ रही हूं, दैट हैव यू हर्ड ऑफ दिस सेंटेंस दैट वंस अ हार्ट पेशेंट इज ऑलवेज अ हार्ट पेशेंट. सुना है कभी ये बात? चैट बॉक्स में लिखो हाँ या ना. यस यस, सुना है बच्चों ने. जागृति. ओके. जागृति सेज व्हाट इज माय नेम. बेटा जी माय नेम इज मिस प्रीतिका कॉल. राइट. So that is not the matter of discussion right now. Matter of discussion is that have you heard of this feeling, of this word that कि हार्ट पेशेंट हमेशा हार्ट पेशेंट रहते हैं. चलो एक चीज डिस्कस करते हैं. मान लीजिए कि I was working in my kitchen and somehow I got stuck with my knife. Okay, तो मेरे हाथ में कट लग गया. ठीक है नहीं, it is just we are हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग दैट मान लीजिए काम करते करते हाथ में मेरे कट लग गया. अब व्हाट डू यू थिंक, क्या वो इंजरी विल एवर रिपेयर और नॉट? रिपेयर होगी क्या? वो कट जो है वो सही होगा या नहीं होगा? बोलो जल्दी बोलो. इट विल. यस इट विल. श्योरली इट विल. Yes, it will. Yes, it will repair. तो कभी आपने ये चीज मन में सोची कि आप लोग भी कभी घूमते फिरते गिर जाते हो? हाँ, घूमते फिरते गिर जाते हो, कभी लग जाती है. तो हाउ डज इट हैपन्स दैट वी कम आउट ऑफ दैट पेन? तो कैसे हमारी सारी चीजें सही कैसे हो जाती हैं? यानी कि ऐसा हुआ होगा कि मेरी आसपास वाली सेल्स, जहां पे सेल्स डेड हुई हैं, वो तो डेड हो गई क्योंकि सेल्स इंजरी हो गई, लेकिन आसपास की जो पड़ोसी सेल्स हैं, नेबरिंग सेल्स हैं, वो सेल्स डिवाइड करना शुरू करेंगी. दे विल डिवाइड एंड दो सेल्स विल रिप्लेस माय ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स. अब ये चीज सोचो, अगर वो वाली सेल्स डिवाइड अब करना शुरू करी एज दे फाउंड दोज दैट इंजरी, तो डिवीजन से पहले वो कहां थी, कौन से फेज में थी? क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको मेरा? माई क्वेश्चन इज दैट कि अगर आज मैंने कहा आज के टाइम पे सेल यहां पे कट लग गया, अब कट लगने के बाद आसपास की सेल्स क्लोज टू दैट वुंड विल स्टार्ट डिवाइडिंग. दैट मीन्स नाउ दे विल एंटर इनटू विच फेज? नाउ दे विल एंटर इनटू G1 phase and then will go to S and then finally will move to G0. So they will complete the center phase and then come into M phase and will finally divide into 2. And ऐसी सारी सेल्स करती जाएंगी और वो इंजरी हील हो जाएगी. तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जब इंजरी हुई उसी टाइम पर ये M फेज में आए, तो M फेज में आने से पहले या इस सेल साइकिल को कंप्लीट करने से पहले ये सेल्स कहां थी? व्हाट डू यू थिंक? तो कुछ बच्चों ने गेस किया है
Nimisha says G naught, SD says G naught, and someone says G1, Karan says G1, and Hardik says G1. Okay, all right. So these were your wild guesses. So लेकिन कुछ बच्चों ने guess सही किया है, उनका guess बिल्कुल सही है. अपूर्वा, अनुष्का, रचिता, yes, इन बच्चों ने बिल्कुल सही guess किया है. And Hardik says, can you repeat this question? Hardik, okay, that's fine. मुझे पता आप इंटरनेट कनेक्शन की वजह से you were not connected with us. Now I will repeat this question. My question was that अगर मान लीजिए आज एक सेल पे हाथ में कट लग जाता है, तो कट लगने के बाद मेरी एक इंजरी क्रिएट हो जाएगी. अब इंजरी हो गई है, लेकिन आसपास की सेल्स क्लोज टू दैट वुंड will start dividing, and if they will start dividing, then what will happen? If they start dividing, what will happen? They will come in G1, in GS phase, then will come to G2, and finally will move to M phase, where they will divide the body into two daughter cells. Now my question, Hardik, was, what do you think? इससे पहले वो cells कहाँ थी? Neighboring cells कहाँ थी? कहाँ रही होंगी? ये क्वेश्चन है आपसे. व्हाट डू यू थिंक कि वोंड से पहले हार्दिक को भी लगता है जी नॉट होगा, जागृति को भी लगता है जी नॉट होगा. वेरी गुड, परफेक्ट. तो बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है. इसका मतलब ये है कि हमारी वो सेल्स जी नॉट फेज में थी, एंड विच इज वाई आई कॉल दैट जी नॉट फेज इज अ मिस्टीरियस फेज. मिस्टीरियस क्यों? क्योंकि कुछ सेल्स इसके अंदर एंटर करती हैं और सेल साइकिल में नहीं जाती, सेल साइकिल को एस्केप कर देती हैं. तो यानी कि सो आई राइट रचिता, जस्ट अ मोमेंट. रचिता प्लीज टाइप इन योर क्वेश्चन अगेन. मुझे आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा, आपको फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा. राइट डाउन योर क्वेश्चन अगेन रचिता. Ma'am, they don't utilize any time as they store cells. Just a moment. अभी इसको खत्म करने दो. I'm coming to you. G naught phase or quiescent phase. This is the phase which can be called as resting phase. Resting phase or also called as dormant phase. Dormant का मतलब होता है inactive, और मैं यहां लिख भी सकती हूं inactive. Resting phase, dormant phase or inactive phase. Here cells escape cell cycle. तो जो सेल्स सेल साइकिल में नहीं जाना चाहती वो कहां चली जाएंगी? जी नॉट फेज में चली जाएंगी. Here cells escape the cell cycle, stay here either temporarily or permanently. तो यानी कि सेल्स यहाँ पे टेम्पररी भी रह सकती हैं और परमानेंटली भी रह सकती हैं. अब तुम लोग मुझे बताओ कि टेम्पररी स्किन सेल्स यहाँ रह रही थी या वो हमेशा के लिए यहाँ रह रही थी? बताओगे कुछ? यस, टेम्पररी. यस, स्किन सेल्स इज एन एग्जाम्पल, और योर हेयर फॉलिकल्स, हेयर सेल्स, ये वाली सेल्स भी तुम्हारी टेम्पररी रहती है. नाउ इफ यू रिमेंबर, in the start of this G naught phase, I said and I asked few people that have you heard of this word that once a heart patient is heart patient forever. अब टाइम आता है इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करने का. हमने लिखा जी नॉट फेज के अंदर, क्विसेंट फेज के अंदर सेल्स परमानेंटली भी रह सकती हैं, टेम्पररी भी रह सकती हैं.
टेम्पररी कौन सी रहती हैं? स्किन सेल्स रहती हैं, यानी कि जब जरूरत थी वो G0 से बाहर आ गई, बाहर कूद के आ गई और क्या करना शुरू कर दिया, बाहर आ गई, यहां से G0 फेज से बाहर आ गई, G1 में गई, S में गई, G2 में गई और फाइनली M फेज में डिवाइड करना शुरू किया. लेकिन देयर आर सम सेल्स लाइक हार्ट सेल्स एंड न्यूरॉन्स. तो हार्ट सेल्स और न्यूरॉन्स ऐसी सेल्स हैं जो हमेशा कहां प्रेजेंट होती हैं? दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन दी G0 फेज. तो ये सेल्स आपकी G0 फेज में रहेंगी हमेशा. G0 या क्यूसेंट फेज में आपकी हार्ट सेल्स हमेशा रहेंगी. जब तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी तो एम्ब्रियोनल सेल्स डिफरेंशिएट कर गई, कईयों ने न्यूरॉन्स बनाए, कईयों ने हार्ट सेल्स बनाई एंड सो ऑन. तो डिफरेंशिएट हो गई एक बारी, लेकिन कभी भी वो डिवाइड नहीं करेंगी. अब डिवाइड नहीं करेंगी तभी हम ये कहते हैं, मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी इंडिविजुअल, किसी पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है, तो हार्ट प्रॉब्लम में क्या हुआ होगा? कहीं ना कहीं उसकी हार्ट सेल्स डैमेज हुई होंगी, कहीं ना कहीं उसकी इंजरी हार्ट में हुई है. या अगर ब्रेन पेशेंट है तो आप तब भी कहते हो कि मान लो कहीं ना कहीं उसके न्यूरॉन्स खत्म हो गए होंगे, डिजेनरेट कर गए या डैमेज हो गया किसी टाइप का. तो अगर डैमेज या डिजेनरेट हो गए तो वंस अ हार्ट पेशेंट या अ मेंटल पेशेंट विल रिमेन ऑलवेज मेंटल, क्योंकि कभी भी वो हमेशा सेल्स तो G0 फेज से बाहर आने नहीं वाली, तो यानी कि कभी भी रिप्लेसमेंट होगा ही नहीं. सो हमेशा एक लूप होल बना रहेगा. तो क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई है? That's why I've written heart cells or neurons fall in this category. And this is one question which is asked definitely in your papers कि heart cells और neurons क्या करती हैं. क्या इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें? यस, सिद्धार्थ आपका क्वेश्चन है कि फिर हम लोग कैसे क्योर करते हैं. बेटा जी, अगर कोई मेंटल पेशेंट है या कोई हार्ट पेशेंट है तो हम उसको एक लेवल तक ठीक कर सकते हैं, तभी मतलब हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसकी थोड़ी बहुत हेल्प ही कर सकते हैं. 100% आप उसको सही नहीं करते हो, ठीक है? 100% वो सही नहीं होता है. हार्ट पेशेंट भी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है. ऑलराइट, हेल्पफुल है लेकिन यस, दे आर नॉट 100% श्योर शॉट नहीं है. Now I think you are very much ready to go for one round of question. तो आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. This is a very good question. You will answer. This is your question. तो क्वेश्चन कीजिए, आंसर लिखिए. This is your question. थोड़ा सा टाइम देते हैं आप लोगों को. This is your question. So I think आपको 1 मिनट दिया जाता है. करो, आराम से क्वेश्चन करो. डोंट मेक हेस्ट. दिमाग लगाओ और आंसर कीजिए. I think enough of time has been given to you. Let's go and see the results. Okay, मैक्सिमम बच्चों का आंसर है ऑप्शन सेकंड. ऑप्शन 1 बहुत कम ने किया है. चलो, let us see who has given what answer. Siddharth says answer 1. Anushka says answer 2. Option 2. Hardik says 1. Jagriti says 2. Yash says 1. Harshita says 2. Karan says 2. Kalol says 3. Nimisha 2. Rachita 2. Apurva 1. MP 1. Rahul 2. So most of the बच्चों का confusion था 1 और 2 में. तो आपकी ये curiosity को खत्म करते हैं and let us write the answer. Cells like neurons and heart cells in G0 phase are metabolically active. 1 is the right answer. 1 is the right answer. So those who have given option number 1, they are correct. So maximum बच्चों ने क्या किया था?
मैक्सिमम बच्चों का आंसर था ऑप्शन 2। मैक्सिमम बच्चों का आंसर था। कई बच्चों ने आंसर किया था ऑप्शन 3 भी किया है, कईयों ने 4 भी किया है। 4 किसी ने नहीं किया। 1 और 2 में ज्यादा कंफ्यूजन थी। लेकिन बेटा जी अब ध्यान दीजिए, आपने लिखा, क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को कि क्या हार्ट सेल्स और न्यूरॉन्स क्या इनएक्टिव हैं या एक्टिव हैं। तो बेटा जी आप ये सोचो, इफ यू आर एबल टू सिट इन दिस क्लासरूम लेक्चर एंड केपेबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ योर न्यूरॉन्स, डू यू थिंक दैट देयर इज अ चांस दैट योर न्यूरॉन्स आर डेड? डू यू थिंक दैट? क्या डेड न्यूरॉन्स की या इनएक्टिव न्यूरॉन्स से तुम काम कर सकते हो इतना? या हार्ट तुम्हारा सर्कुलेशन कर रहा है, ब्लड पंपिंग कर रहा है, तो क्या तुम्हें लगता है वो अपने डेड फॉर्म में प्रेजेंट है? तो आपने लिखा, जिन बच्चों का आंसर था मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, द रीजन फॉर देयर कंफ्यूजन वाज कि यहाँ पे हमने लिखा है इनएक्टिव फेज। तो बेटा फेज इनएक्टिव है लेकिन सेल्स आर नॉट इनएक्टिव, सेल्स आर वेरी मच एक्टिव, तभी यू आर केपेबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऑलराइट, इज देयर एनी कंफ्यूजन? जागृति हैड अ क्वेश्चन. Jagriti, confusion? Okay, just a moment, I'll see. Question था कुछ. यस, जागृति का क्वेश्चन है ब्रेन सेल्स. बेटा ब्रेन सेल्स आर न्यूरॉन्स ओनली. न्यूरॉन्स ब्रेन सेल्स ही तो होती हैं. तो आपका क्वेश्चन सही है कि ब्रेन सेल्स आर परमानेंटली इन जी नॉट फेज, एज इट इज सेड दैट आफ्टर अ सर्टेन एज सम ऑफ द सेल्स विल डाई एंड विच विल बी नेवर रिप्लेस्ड. इट इज अ वेरी वेरी ट्रू स्टेटमेंट. न्यूरॉन्स ब्रेन सेल्स ही तो होती है बेटा. तभी तो कहते हैं कि अगर डिजेनरेट हो गई तो सही नहीं होगी. बिल्कुल सही. Apurva says heart cells and neurons are G0 phase. Does this mean that they will never undergo division? Yes beta, they will never ever undergo division. Now मेरे को आपको एक चीज पूछने दो जिससे आपको क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी आपकी हो जाएगी और ज्यादा. अब मुझे ये बताओ, क्या आपने ये लाइन कभी सुनी है कि एक इंडिविजुअल का हार्ट साइज, दिल का साइज इज इक्वल टू उसके पाम का साइज? क्या ये चीज सुनी है आपने कभी? सुना है? गुड. और किसने सुना है? सबने सुना है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. दिस इज अ वेरी गुड क्लास. आई थिंक करण भी जानता है, निमिषा भी जानती है, पूर्वा, जागृति, एवरीवन नोज. गुड क्लास इट इज. सो इट्स गुड. आपको पता है कि हम कहते हैं कि इंडिविजुअल का हार्ट साइज इज इक्वल टू उसके ब्रेन का साइज. जागृति से सिंस चाइल्डहुड. ओके, गुड. Let's see your wittiness and your presence of mind further in this class. अच्छा, तो अगर एक बच्चे का, मेरा हार्ट अभी इतना है, तो क्या जब मैं इन्फेंट स्टेज में थी तब भी मेरे हार्ट का साइज इतना था? श्योरली नॉट. दैट मीन्स इन्फेंट का हार्ट साइज उसके पाम के जितना, अडल्ट का हार्ट साइज उसके पाम के जितना. व्हाट डू यू थिंक? हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हार्ट सेल्स विल नेवर डिवाइड, एंड देन हम कहते हैं कि एक बेबी का हार्ट पाम के जितना है और एक एडल्ट का हार्ट भी उसके पाम के जितना है. तो एडल्ट और बेबी के पाम में और हार्ट में इतना डिफरेंस कैसे आया? इफ दे वर नॉट केपेबल ऑफ अंडरगोइंग डिविजन. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन? राइट इन योर चैट बॉक्स. Here your thought is not right. Germ cells gametes बनाते हैं. Germ cells replace नहीं कर सकते न्यूरॉन्स को. You are wrong. No, this cannot happen.
Hardik, I'm coming to your question. Just wait. The cells are not dividing, but they might grow in their size. Jagriti is such a good girl. Since her childhood, she was good. Good. So we expect selection from you then. Alright. So question था कि हार्ट साइज, हार्ट की सेल्स कभी डिवाइड नहीं करेंगी तो बड़ी कैसे हो रही हैं? इसका मतलब मैं आपको एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ बेटा, लेकिन इसको हम लिख कहीं नहीं रहे, लेकिन आज समझाने के लिए यहाँ बना रही हूँ आपके. मान लीजिए एक इंडिविजुअल का हार्ट है. सिंस इट्स नॉट अ करेक्ट पिक्चर ऑफ हार्ट, बट स्टिल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. मान लो ये इन्फैंट था. इन्फैंट का हार्ट है ये. इन्फैंट. एंड लेट अस से इट इज मेड अप ऑफ हाइपोथेटिकली 50 सेल्स का बना है. जस्ट फॉर इंस्टेंस 50 सेल्स का बना है. अब आगे जाके व्हेन दिस इन्फेंट विल टर्न इनटू एन एडल्ट, द हार्ट साइज विल डेफिनेटली ग्रो, बट द नंबर ऑफ सेल्स विल रिमेन दैट 50 ओनली. यानी कि यहां पर भी 50 ही सेल्स रहेंगी, बट द डिफरेंस में बी that these cells may grow bigger, and so is a bigger heart, but the number of cells will remain the same. So is that clear now? Okay, all right. So ये चीज clear हो गई सबको? Now one thing that अभी आपने किसी ने पूछा कि what triggers that growth और what happens, where it happens. So यहाँ पे मुझे आपको एक एग्जाम्पल देना चाहिए. ऐसे आप लोग आकाश में रोज आते हो तो गेट पर गार्ड होता है जो आपका आइडेंटिटी कार्ड देखता है, चेक करता है और आपको अंदर जाने देता है. इफ यू हैव एन आईडी कार्ड, यू हैव एन आईडी कार्ड और आपके पास गार्ड क्या करेगा, आपका आईडी कार्ड चेक करेगा और आपको आगे जाने देगा. जिन स्टूडेंट्स के पास आईडी कार्ड नहीं होगा उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा. सो दैट विल मीन इफ यू पास अ पर्टिकुलर टेस्ट, देन ओनली you will be able to enter inside the institute. Such thing will also happen in case of cell cycle. यानी कि बेटा जी हर एक स्टेप पे either that is M phase, either that is G1 phase और S phase. यहाँ पे बना लेते हैं अपने लिए थोड़ा सा. यहाँ पे just a moment. So, what will happen? जैसे आपको गार्ड एंटर करने देता है आईडी कार्ड चेक करके, तो क्या होगा, ऐसे ही जब भी सेल G1 से S में जाती है, देयर इज अ चेक पॉइंट. There is first checkpoint that will see that cells have to enter from G1 to S. मान लो सेल में खाना अच्छा नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट ज्यादा नहीं मिल रहे या न्यूट्रिशन नहीं है या कोई दिक्कत है, तो सेल क्या होगी, G1 फेज से S में नहीं जाएगी. It will get arrested in G1 phase only. So this will be my checkpoint. Which checkpoint? It was my G1 to S checkpoint. Now again, such checkpoint will be also present here also. तो यहाँ पे एक और चेक पॉइंट होगा. इस चेक पॉइंट का नाम है G2 to M check point. तो these checkpoints, these guards will ensure कि क्या चीज हो रही है, कौन सी सेल को आगे जाने देना है, कौन सी सेल को आगे नहीं जाने देना. अब मान लो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि G1 में ऑर्गेनली डुप्लीकेट करी, S फेज में डीएनए डुप्लीकेट करा एंड G2 में भी कुछ ऑर्गेनलीज डुप्लीकेट करेंगी. मान लो गलती से ड्यूरिंग दी S फेज व्हाट विल हैपन, S फेज में डीएनए डुप्लीकेट किया और गलती से गलत डीएनए सिंथेसाइज हुआ, गलत डीएनए डुप्लीकेट हुआ, गलत न्यूक्लियोटाइड्स में ऐड हो गए.
तो क्या होगा, गलत इंफॉर्मेशन को आगे ना जाने देने के लिए यहाँ पे ये चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द फंक्शन. आपने किसी ने पूछा था कि व्हाट विल गाइड दी ग्रोथ, तो हर जगह ग्रोथ यही चेक पॉइंट्स डिसाइड करते हैं करना. अच्छा, अपूर्वा बोल रही है कि प्लीज रिपीट अगेन. अपूर्वा, बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया हमने. ये डिस्कस किया था दैट हर एक सेल साइकिल के हर एक फेज में देयर आर चेक पॉइंट्स एंड दीज चेक पॉइंट्स विल इंश्योर कि सेल तरीके से हर एक फेज में एंटर कर जाए. फॉर इंस्टेंस, जैसे आप आकाश इंस्टीट्यूट में एंटर करते हो तो गार्ड आपको देखता है कि जिसके पास आईडी कार्ड है उसी को जाने दे. ऑलराइट, वैसे ही ये चेक पॉइंट्स क्या करेंगे, चेक करेंगे कि सही कंडीशन वाली सेल ही G1 से S में जाए, S से G2 में जाए और फाइनली 2 बेटर डॉटर सेल्स बनाए. ठीक है. अब कभी कभार व्हाट हैपेंस, कैंसर होने का चांस कब होता है? कैंसर होने का चांस तब होता है जब सेल्स हो जाती हैं नॉटी एंड दे डू नॉट फॉलो और दे डू नॉट ओबे दीज चेक पॉइंट्स. तो अगर वो चेक पॉइंट्स को ओबे नहीं कर रही तो क्या होगा, दे विल अंडरगो फॉल्टी माइटोसिस. तो बार बार अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी जिसकी वजह से कैंसर हो जाएगा. वैसे ही जैसे अगर गार्ड आपका इंस्टीट्यूट में बच्चों को आईडी कार्ड ना चेक करने दे तो आसपास में रास्ते में चलने वाले सारे लोग अंदर चले जाएंगे एंड दस विल क्रिएट अ कियोस एंड सो विल कैंसर सेल्स क्रिएट अ कियोस. ऑलराइट, इज दैट क्लियर? एसडी का कोई क्वेश्चन है सिद्धार्थ का, देखते हैं उसको. Siddharth, your question is not in a very legible form. I cannot understand. Then how genetic disorders occur even after the AC? What is that AC? Presence. Oh my God. Okay. You guys are technology loving students, you know everything to write short forms. Whenever you have to write a question, please try to write it in a very legible form. Okay? So presence आपने लिखा है. Generally what happens, cells obey these checkpoints. उनका generally tend रहता है कि वो check point obey कर लें. लेकिन कभी कभार ऐसे stimulus होते हैं जब ये check points को नहीं follow करते, उस टाइम पे कैंसर होता है. ठीक है. सो दीज आर एरर्स इन सेल साइकिल. हर चीज में एरर होने का चांस है. टू एरर इज ह्यूमन. तो एरर हो सकता है, कभी फॉल्टी की वजह से ये होएगा, कैंसर होएगा, अदरवाइज नहीं होगा. नॉर्मली सेल्स विल ओबे दी चेक पॉइंट्स. ठीक है. ओके, आगे चलें. Should we move ahead? Is due to some deficiency or enzyme. जागृति का क्वेश्चन है. यस जागृति, एंजाइम्स कभी कभार नहीं बनते या एंजाइम्स फॉल्टी बन जाते हैं, गलत बन जाते हैं, तब जाके ये प्रॉब्लम होती है. अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो एंजाइम्स भी तो किसी स्टेज में बननी चाहिए ना सेल साइकिल की. एंड जागृति बेटा, ये रहा आपका G2 फेज. इसी G2 फेज में वो एंजाइम्स बनते हैं जो यहाँ के चेक पॉइंट्स बनाते हैं. ठीक है. तो मान लो G2 फेज में कोई दिक्कत आ गई तो सेल क्या करेगी, अरेस्ट हो जानी चाहिए G2 के अंदर ही. अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक है तो शुड कम टू M फेज. ठीक है. क्लियर है? ओके. Here is typing something. Yes, yeah, go on. Thank you. Okay, okay. Yes, yes, okay. All right. All right. Amazing class it is. Okay. Let us come to new topic. Now, that's not very new. Instead, we will write the events that will happen in G1 phase, S phase, G2 phase. Let's find out. क्या क्या हो रहा है यहाँ.
So my heading is events in rather I'll write occurring in first phase, that was G1 phase. और दोबारा से नहीं हम लोग लिखेंगे, we already know that it is that pre-mitotic और post-mitotic, it is post-mitotic phase, जानते हो आप लोग. हम लोग इसके अब इवेंट्स लिख लेते हैं, क्या क्या हुआ. पहली चीज, मैक्सिमम सेल ग्रोथ अकर्स हियर. मैक्सिमम सेल ग्रोथ, तो यानी कि सारा काम यही हो जाता है, थोड़ा बहुत काम बाद में करती है सेल बाकी फेजेस में, लेकिन मैक्सिमम सेल ग्रोथ अकर्स हियर. देन नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेलीज भी यही डुप्लीकेट हो जाती हैं. तो मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल और ऑर्गेनेलीज, whatever is feasible to you, maximum cell organelles duplicate. भाई duplicate का मतलब फोटोकॉपी होना, xerox होना, duplicate here. Then nucleotides. बेटा जी nucleotides क्या होते हैं? These are the building block of DNA और RNA. Nucleotides, अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड किनको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दीवार को तोड़ें तो दीवार में से ईंटें बाहर आएंगी, वैसे ही प्रोटीन्स को तोड़ें तो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स को आप अमाइनो एसिड कहते हो. सो न्यूक्लियोटाइड्स किन की बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगी? डीएनए या आरएनए की. तो अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स. एंड एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं? चैट बॉक्स में लिखो. एंड RNA लिखो. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. I have indeed a very good class. ATP, adenosine triphosphate, that is your energy currency. तो न्यूक्लियोटाइड, अमाइनो एसिड्स, ATP एंड RNA. बेटा आगे जाके 12th क्लास में आपने पढ़ना है RNA के 3 टाइप्स होते हैं. वन इज mRNA, other is rRNA, last one is tRNA. So these are different types of RNAs. M stands for messenger RNA, T stands for transfer RNA, R stands for ribosomal RNA. तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक बता दिया, ये यहां करेंगे. नाउ ये सब हुआ. प्लस इस टाइम पर क्या होगा? इंपॉर्टेंट, रेड पेन से लिख रही हूं, नो डुप्लीकेशन इन जेनेटिक मटेरियल. क्योंकि ये चीज क्या होने वाली है? क्या होने वाली है? नो डुप्लीकेशन इन जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज दैट इज अ केस स्पेसिफाइड टू एस फेज. यस. All right. Beta, your class is about to finish within 5 or 10 minutes, I think. Suppose कितने मिनट रह गए? 9 मिनट्स रह गए. तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट करते हैं. मैं चाहूंगी कि आप एक आधा न्यूमेरिकल कर लो, और अगर क्लास एब्रप्टली एंड हो जाए तो क्लास के एंड में एक फीडबैक फॉर्म आता है, और जिसमें आपका इनपुट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. आप इनपुट अपना जरूर भेजें. आप इनपुट भेजेंगे तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या आपको कमी लगी, और जो आपको कमी लगी वो नेक्स्ट डाउट सेशन में हम सही कर लेंगे. ठीक है? तो आपके अकॉर्डिंग डिजाइन होगा, तो आप उसमें जरूर लिखिएगा जो भी आपको लगा. ऑलराइट. सो लेट अस कम टू एस फेज क्विकली. एस फेज का न्यूमेरिकल मैं आपको कराना चाहती हूँ. G1 फेज कर लिया आपने. Okay, so I have my
Let's make haste. I have my S phase. S phase was my synthesis phase. Synthesis phase. Synthesis phase DNA की रिप्लिकेशन करने वाला फेज. आप लोग पहले एक चीज बताओ, क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है फिर से. This is A and this is B. Which of them is a correct chromosome? Option 1 A, option 2 B, option 3 none, option 4 both. Write in your chat box whatever you feel is the right answer. B, H बोला गया बच्चों ने. H बोला 4. Hiya says B. Rachita says B. Sid says 4. And who else? Karan says 4. Nimisha says 4. And speed it up with MP_1 says 4. Apurva says 4. Jagriti is typing something. Jagriti, make haste. Jaldi likho beta. Jagriti says 2. Alright. Time's up. So, आप लोगों ने, what is the question? the question is on your screen only बेटा. That इन दोनों में से आप किसको सही क्रोमोसोम कहोगे? ऑप्शन ए को या ऑप्शन बी को? हार्दिक, पता चला आपको? Which of the following is the correct chromosome? बेटा क्वेश्चन सामने है. ये अच्छा मिल गया आंसर बी. तो बेटा जी जिनका आंसर 1 था, 2 था या 3 था, 4 था, उसको साइड पे रखे, कॉन्सेप्ट समझे. क्रोमोसोम के अंदर पड़ा रहता है जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए. अब डीएनए ये नहीं है बेटा. डीएनए को देखने के लिए वी हैव टू जूम अ पोर्शन. मान लो ये पोर्शन मैंने जूम कर लिया. अब इस पोर्शन को देखती हूं. इस पोर्शन के अंदर आई विल हैव, दिस इज माई जूम्ड व्यू, एंड आई हैव ऐसा कुछ. highly coiled structure, and coiled structure, the coiling is aided by some proteins called as histone proteins. तो हिस्टोन प्रोटीन इसको कॉइल करने में हेल्प कर रहा है. अब डीएनए कहां गया भाई? डीएनए देखना था हमको. इस पोर्शन को जूम करूं तो यहां पे हमको दिखाई देगा डीएनए. यहां पे हमें दिखाई देगा डीएनए. तो यहां दिखेगा डीएनए जो आप पढ़ चुके हो, एटीजीसी जिसमें होते हैं. सो यानी कि डीएनए हाईली कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है यहां पे. नाउ ऑप्शन ए में भी डीएनए है. ऑप्शन बी में लेट अस से कि ऑप्शन ए में डीएनए कंटेंट को मैं 2C बोल रही हूं. सी का मतलब कंटेंट, अमाउंट ऑफ डीएनए. ऑप्शन बी में the content of DNA has been doubled and I will call it as 4C DNA. तो इसका मतलब है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब है कि ये भी, this is also one chromosome and this is also my one chromosome. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है डीएनए का. A कंडीशन में अमाउंट ऑफ डीएनए वाज 2C एंड कंडीशन 2 में अमाउंट ऑफ डीएनए इज 4C. तो आप फिर से जहां से हमने शुरू किया था हम वापस आते हैं उस जगह.
आपने पहली साइकिल में पहली जगह ये पढ़ा कि मदर सेल के पास जितना डीएनए कंटेंट है, मान लो मदर सेल में यहाँ डीएनए कंटेंट 2C है, तो जब ये अपना कंटेंट डबल करती है तो यहाँ पे कंटेंट विल डबल इनटू 4C एंड देन दोबारा से डॉटर सेल्स में जाएगा 2C एंड 2C। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, फिर से जानते हैं हम लोग। तो यानी कि एक कंडीशन भी 1 क्रोमोसोम है बट जेनेटिक कंटेंट इज 2C, और बी भी 1 क्रोमोसोम है विथ जेनेटिक कंटेंट 4C। दैट मीन्स व्हाट विल यू से, व्हाट आंसर शुड बी राइट, विच ऑप्शन इज राइट, बताओ। दिस मीन्स दैट B1 was a duplicated chromosome. Beta, we will not say duplicated chromosome. Rather, we will say that both of them are chromosomes, but B has duplicated amount of DNA. That is the correct explanation. So, fourth इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोनों में कंटेंट का फर्क है, अदरवाइज बोथ ऑफ देम आर क्रोमोसोम्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? क्या कोई डाउट है आप लोगों को? नो डाउट? नो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो सिंथेसिस फेज में पहली चीज हम लोग लिख रहे हैं इसके इवेंट्स। फर्स्ट इवेंट यही होने वाला है बेटा, कंटेंट इज गोइंग टू डुप्लीकेट फ्रॉम 2C to 4C। In this phase, DNA is duplicated from 2C to 4C, जहां पे C का मतलब है डीएनए अमाउंट, डीएनए का कंटेंट। अच्छा बताओ, क्रोमोसोम नंबर भी चेंज हुआ या क्रोमोसोम नंबर सेम रहा? जल्दी बताओ, सेम और डिफरेंट? Chromosome number will remain the same or chromosome number will become, yes, good, that means chromosome number will remain same, but chromosome number, अब आप छोटा सा एक न्यूमेरिकल करो, chromosome number remains same। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रही हूं जो आप कर पाओगे, मुझे अच्छे से पता है, आई बिलीव इन यू गाइज। सो ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे आप लोगों के लिए just a second. Now there is a question on your board and write down the answer. सोचो इस क्वेश्चन को। If diploid daughter cell has 10 picograms of DNA in their nucleus, determine the amount of DNA in the mother cell at its G2 phase. Write down your answers. जल्दी करो बेटा, we are running short of time. Make haste. Majority goes for option 3. And there are some students with option number 1. Okay. All right. मैक्सिमम बच्चों का आंसर 3 जा रहा है। Okay, let us see the answer by your names. SD Siddharth says 3, MP1 says 3, Karan says 2, Hardik says 3, Kalol says 1, Hiya 3, Apurva 3, maximum class 3, Jagriti 3, Rachita 3. All right. So let us solve this question once again. कहता है कि अगर डिप्लॉयड डॉटर सेल्स के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए है 10 पाइकोग्राम, तो आपको बेटा एक चीज याद रखनी है, जब कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन पेपर में आए तो सबसे पहले अपने लिए एक सेल साइकिल बनाओ छोटा सा, फिर उसमें वो बना दो, ये अपना एम फेज था, ये अपना G1 फेज था, ये G2 ये S फेज था, ये G2 फेज था।
ठीक है, फिर क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको सॉल्व करो। बोलता है कि डिप्लॉयड डॉटर सेल्स हैव 10 पाइकोग्राम ऑफ डीएनए इन देयर न्यूक्लियस। तो इसका मतलब होगा मियोसिस के बाद बनी 2 डॉटर सेल्स और इन 2 डॉटर सेल्स में है 10-10 पाइकोग्राम ऑफ डीएनए। अगर इनमें 10-10 पाइकोग्राम ऑफ डीएनए है तो इसका मतलब ये है कि G2 फेज, S फेज में डीएनए कंटेंट 2C से हुआ 4C। तो यहां पे ये 4C कंटेंट ही था मियोसिस से पहले, जो एक सेल में गया 2C, एक सेल में गया 2C। तो इसका मतलब यहां पे S फेज में जेनेटिक मटेरियल कितना था 20 पाइकोग्राम। तो G2 फेज में भी तो 20 ही रहेगा ना, 20 पाइकोग्राम रहेगा। लेकिन G1 फेज में कितना होगा 10 पाइकोग्राम। तो 10 पाइकोग्राम कब रहेगा G1 फेज में। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था इफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स हैव 10 पाइकोग्राम ऑफ डीएनए इन देयर न्यूक्लियस, बताओ कितना है मदर सेल के पास इन G2 फेज। तो G2 फेज के लिए आंसर क्या था, क्या होना चाहिए था आंसर, लिखो क्या आंसर लिखूं, 20 पाइकोग्राम्स। रचिता सेज 20, एवरीवन सेज 20, यस। तो थर्ड इज द राइट आंसर। तो मैक्सिमम बच्चों का सही हो गया, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सही है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, डाउट किसी टाइप का, नो। सो बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी से सॉल्व करना है आपने, ठीक है। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में G1 फेज पूछ ले, हो सकता है आपको क्वेश्चन में G2 फेज पूछ ले या कोई भी फेज पूछ ले। तो आपने पहले अपने लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सेल साइकिल बना लो, उसके बाद ऐसे ऐसे प्लॉट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। हम लोग क्लास एंड कर रहे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई एंड द क्लास। नो सिद्धार्थ, दिस वॉज नॉट माइटोसिस, माइटोसिस हैज टू जस्ट स्टार्ट। यहाँ पे अभी सिद्धार्थ देखो बेटा, यहाँ पे आपने अभी ये बनाया था माइटोसिस, तो ये रहा ना M फेज रहा। हम लोग तो अभी G1, S और G2 ही कर रहे हैं। भाई आप इतनी जल्दी इम्पेशेंट कैसे हो सकते हो? वेन यू स्टे वेरी कामली इन योर थिएटर टू वॉच द मूवी, टू वॉच द क्लाइमैक्स, आप पूरी मूवी देखते हो ना, तो अभी सिर्फ मूवी में इंटरफेस चल रहा है, क्लाइमैक्स देखने के लिए यू हैव टू लॉग इन फॉर नेक्स्ट सेशन, ऑलराइट। सिद्धार्थ नो, G2 फेज में कुछ ऑर्गेनलीज डुप्लीकेट करती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपैरेटस एंड क्लोरोप्लास्ट, लेकिन मैक्सिमम सेल ऑर्गेनलीज G1 में करती हैं। तो कुछ ऑर्गेनलीज G2 में भी करती हैं, उनका नाम अलग से है। प्लस स्पिंडल फाइबर्स जो माइटोसिस में हेल्प करेंगे वो G2 में बनते हैं, ये डिफरेंस है। सो इट वॉज नाइस विद यू पीपल, क्लास वॉज वेरी गुड, बच्चे बहुत अच्छे थे।